On the last time we were discussing, we left the topic about the speed torque conventions in a multi-quadrant operation. So now we'll see that what is a multi-quadrant operation and what are the speed torque conventions. As you people very well know is that whenever we draw the output characteristics of a motor, we draw the characteristics in terms of speed and torque. ठीक है, तो in case of a motor, what you have seen up till now is that the torque, the speed is taken on the y-axis and the torque is taken on the x-axis. ठीक है, that means जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास एक्स एक्सेस पे रहता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास वाई एक्सेस पे रहता है. कोई भी प्लेन में, कोई भी टू डायमेंशनल प्लेन में ये रिक्वायरमेंट होती है कि दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज पुट ऑन द एक्स एक्सेस एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज पुट ऑन द वाई एक्सेस. ठीक है, सो हियर द थिंग्स आर लाइक दिस. It means that a torque is a dependent variable and it is dependent upon x. जैसे आपके पास लिखते हैं कोई भी फंक्शन y is equal to mx plus c. ठीक है, तो y is actually dependent on x. That means you change different values of x to obtain different values of y, or how y is related to x. So this is how the things are there in case of सिंपल मैथमेटिक्स. ठीक है, बट हेयर इन केस ऑफ, तो जो हमारा बेसिक चीज़ रही वो ये रही कि हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई एक्सेस पे होगा और इंडिपेंडेंट एक्स पे होगा. व्हेन वी टॉक अबाउट ड्राइव्स और व्हाट इज अ ड्राइव, मोशन कंट्रोल सिस्टम्स आर नोन एज ड्राइव्स. So when we talk about drives, so the main concern is that you have a load and you have defined the torque speed or the speed torque characteristics of that particular load, and you have to drive that load with a certain prime mover. ठीक है, तो now whenever you have any load that is supposed to be at a zero speed, and then you have a drive system that is actually going to drive that load. जैसे आपके पास कोई गाड़ी भी है, कोई बाइक भी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो अगर आपके पास लिफ्ट है तो क्या होगा कि लोकोमोटिव है, कोई भी ऐसी अगर चीज़ आपके पास होती है जिसमें कोई भी मोशन कंट्रोल सिस्टम लगना है, तो इनिशियली वो रेस्ट पे होगी. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट you require a certain system that must fulfill the requirements of that load, and that is defined in terms of speed and torque. तो जब हम शुरुआत करते हैं, the very basic thing that the speed is equal to zero. When the speed is equal to zero, you require a certain amount of force to move it. ठीक है, जैसे हमारे पास एक चीज़ मोटर्स के केस में अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग टॉर्क कहते थे. ठीक है, if the starting torque is greater than the load torque, only then the system will start. If the starting torque of the motor is less than the load torque, the system won't start. ठीक है, आप अगर किसी ट्रक के आगे जो है वो अपनी बाइक लगा के खींचने की कोशिश करें तो नहीं खींच जाएगा वो. ठीक है, बिकॉज यू रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट. इनिशियली बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट, तो रिमेंबर दैट द स्पीड इज जीरो. देन यू हैव टू ड्रैग इट. You require a certain amount of force. Rotating effect of force is known as torque. ठीक है, so you require a certain amount of force to move that. So the very first requirement here is the torque. Now, as the motor torque is greater than the load torque, or the prime mover torque is greater than the load torque, the load starts moving, or the motor load starts moving. Then in that case, if you increase the torque, that means जो हमने पीछे इक्वेशन देखी थी आपके पास, ये वाली जो इक्वेशन थी, ठीक है, तो what will happen? The more is the difference between 2.11, the more the difference between the motor torque or the prime mover torque and the load torque, the more will be the value of acceleration. ठीक है, j d omega by dt, यानी चेंज ऑफ, और से यू कैन से इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. j हटा दीजिए अगर आप उसमें से,
ठीक है, तो द डिफरेंस इन द load torque and the prime mover or the motor torque actually decides or is proportional to acceleration. यानी जितना ज़्यादा फर्क होगा, जितना ज़्यादा आप मोटर टॉर्क लगाएंगे लो टॉर्क से ज़्यादा, पहली बात तो यह है कि आपको उससे ज़्यादा लगाना है मूव कराने के लिए, अगर उससे कम लगाएंगे तो मूव नहीं करेगा. हाउ कैन इट कैन ओवरकम दैट अनलेस इट योर प्राइम मूवर टॉर्क ओवरकम्स द लोड टॉर्क, ओनली देन द सिस्टम विल स्टार्ट. ठीक है, वंस इट हैज ओवरकम दैट यानी उससे ज़्यादा हो गया है, तो द डिफरेंस इन बिटवीन दोज टू टॉर्क्स एक्चुअली डिसाइड दैट हाउ मच इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन. इसका मतलब जितना ज़्यादा फर्क होगा दोनों में उतनी तेज़ी से ही एक्सेलरेट करेगा. अगर बहुत ही थोड़ा सा फर्क होगा तो इट विल एक्सेलरेट विद अ वेरी लो पेस बिकॉज टी माइनस टी एल इज गोइंग टू बी अ वेरी लो वैल्यू, सो द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी ए लो वैल्यू. ठीक है, तो एट लास्ट व्हाट हैपेंस, द मोर इज द डिफरेंस इन द टॉर्क, the more is the acceleration. If more is the acceleration, in fact the speed increase or the net speed is going to increase. जैसे आपके पास एक्सेलरेट कोई भी चीज़ अगर तेज एक्सेलरेट करेगी तो एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो है ही है, स्पीड भी बढ़ेगी अगर वो पॉजिटिव है डी ओमेगा बाई डी टी. ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन केस ऑफ ड्राइव्स इज दैट एज यू गो ऑन वेरिंग द वैल्यूज ऑफ टॉर्क or say go on increasing, अभी हम सिंपल केस लेते हैं, go on increasing the values of torque, what will happen, the speed goes on increasing. तो इस वाले केस में अगर हम ड्राइव्स के केस में अगर हम देखेंगे तो द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओमेगा एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टी, यानी स्पीड इज डिपेंडेंट अपॉन टॉर्क. जितना ज़्यादा आप टॉर्क लगाएंगे उतना ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी. ठीक है, लो टॉर्क तो आपका डिफाइंड है, अगर मोटर टॉर्क का डिफरेंस उससे ज़्यादा होने लगता है और जितना ज़्यादा होता है तो उसी हिसाब से आपकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी. दैट मीन्स ऑल द थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन द टॉर्क ओवर हेयर. So here in case when we study drives or when we explain any motion control systems or motion control, in that case torque is an independent variable and speed is a dependent variable. ठीक है, इन केस ऑफ मोटर्स अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात करें, जब हम वहाँ पे आते थे, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक पढ़ी हैं सारी मोटर्स में, ठीक है, आपने शंट मोटर की और सीरीज डीसी सीरीज मोटर की, कंपाउंड मोटर की और 3 फेज इंडक्शन की, सिंक्रोनस की, इन सब की स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हैं, जिसमें स्पीड वाई एक्स एक्सिस पे होती थी और टॉर्क वाई एक्सिस पे होता था. वाई बिकॉज यू पुट ए रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ स्पीड के, स्पीड शुरू में 0 थी, जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो उस पर देखते हैं टॉर्क कितना मिलता है. कितना मिलता है का मतलब ये है कि पहले स्पीड आएगी बाद में टॉर्क आएगा. दिस इज अबाउट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप. तो इस केस में क्या होता है आपका कि you have a dependent variable to be torque and the independent variable to be speed, because you go on varying the values of speed and you see that how much torque is available at that particular speed. ठीक है, so you draw the characteristics of an electric motor on omega t plane. हम एक्स वाई एक्सेस कहते हैं ना, जैसे एक्स वाई प्लेन कहते हैं. ठीक है, तो पहले एक्स एक्सेस लिखी जाती है और बाद में वाई एक्सेस लिखी जाती है, यानी पहले ऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर एब्सिसा लिखा जाता है. ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल एक्सेस. तो ऐसे ही हम कहते हैं इसमें स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स. स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स दैट द स्पीड और द वेरिएबल दैट इज कमिंग फर्स्ट, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, जो पहले आ रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो दूसरा आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. यानी एक्स वाई एक्सेस है तो एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, ऐसे ही दूसरी चीज क्या होगी कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स. स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब स्पीड is on the x axis and it is an independent variable and t is on the y axis and it is a dependent variable. ठीक है, अगर हम इसी को टॉर्क स्पीड प्लेन कहें या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कहें तो ड्राइव्स के लिए ये चीज ओके है. अब नाउ देयर इज सॉर्ट ऑफ ए कन्फ्रंटेशन कि बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट ए मोटर or a machine to a load and that is a mechanical load.
So in that case, what happens is that the characteristics of the motor is drawn on omega t plane, and the characteristics of the load is drawn on t omega plane. ठीक है. So how will you match the characteristics? The thing is that जैसे आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जैसे कार्टेशियन था, पोलर था, ठीक है. तो अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो व्हाट यू डू, इफ यू वांट टू कंपेयर देम और यू वांट टू ऐड देम, कुछ भी मल्टीप्लाई देम, व्हाटएवर यू हैव टू डू, in that case what you will have to do, you have to transform the coordinates from one coordinate system to the another coordinate system such that both the coordinates are the same, and then you actually go for any type of मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जो भी आपको करना है वो आप उसके बाद कर लेते हैं. यानी कार्टेशियन है तो उसे, और एक पोलर है तो या तो उसे पोलर बना लेंगे या दोनों को कार्टेशियन बना लेंगे. ठीक है, उसी के बाद आपके पास काम चलेगा. The very same thing happens over here is that whenever you have a motor in a load system, the motor characteristics are defined on a omega t plane and the load characteristics are defined on the t omega plane. Okay. So in that case what happens is that you will have to transform the characteristics either of the load into the motor plane or the omega t plane, और द मोटर इनटू द लोड प्लेन यानी टी ओमेगा प्लेन. यानी ओमेगा टी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मोटर की हैं वो आप लोड में लेके जाएंगे. ठीक है, बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स आर सेम, सो इट इज नॉट ऑफ ए मच डिफिकल्टी और थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती उसमें. ठीक है, बट द थिंग इज दैट इफ यू आर गोइंग टू मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दैट केस इन ऑल द केसेस यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक्स आइदर फ्रॉम वन प्लेन टू द अदर और सेकेंड टू द फर्स्ट. अब इसकी हम बात करते हैं कि क्या चीज़ होती है और कैसे होती है. ठीक है, एंड व्हाट आर द स्पीड टॉर्क कन्वेंशंस. ठीक है, मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन पे आते हैं हम. सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें. Yeah, this one. ये देखिए, ये हमने पहला वाला बनाया है, दैट इज ओमेगा टी प्लेन. ओमेगा टी प्लेन का मतलब, ये उल्टा लग गया. द फर्स्ट वन इज टी ओमेगा प्लेन. दिस इज, ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं एक दूसरे के. आई हैव जस्ट रिटन इट, तो गड़बड़ हो गई. तो दिस इज टी ओमेगा प्लेन बिकॉज टी इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड ओमेगा इज ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, और ये वाला जो है आपके पास ओमेगा टी प्लेन है जिसमें ओमेगा एक्स एक्सिस पे है और टी वाई एक्सिस पे है. ठीक है, सो नाउ कम टू दिस वन बिकॉज दिस इज द वेरी वेल नोन प्लेन व्हाट यू हैव स्टडीड अप टिल now in case of electric machines. And basically what we'll be doing is that we'll be transforming the characteristics of the load on the motor plane. क्योंकि मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पहले से पढ़ रखी हैं, एंड अगर आप उसे भी अपनी जगह से गड़बड़ करेंगे या ट्रांसफॉर्म करके ले जाएंगे तो एक नए प्लेन में जाके जो है वो मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होंगी, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स नई हैं आपके लिए. सो दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. सो इन दैट केस what in this subject we will be considering is that for most of the times we will be considering the characteristics in the omega t plane. That means the characteristics of the t omega plane will be brought out into your normal motor plane. यानी आप लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म करके मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लेन में लेके आएंगे और फिर उसके बारे में स्टडी करेंगे क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है, तो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. ये आपके पास ये ओमेगा टी प्लेन है, ये गलत लिखा हुआ है, ओमेगा टी प्लेन है आपके पास ये. तो ओमेगा टी प्लेन में ओमेगा आपके पास एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, you see that the values of all the values of omega are positive and all the values of t are also positive. Remember, this is a very important topic and this decides a lot of things and the characteristics which are to be studied in the later classes. ठीक है, so this is a simple one. If you get into the basics of this, you'll be fine with it. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में you very well know कि दोनों जो हैं आपके पास ओमेगा भी और टी भी दोनों पॉजिटिव होंगे.
सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और टी की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो ओमेगा भी नेगेटिव है, और ये यानी ये सारी वैल्यूज जो इस क्वाड्रेंट में आएंगी उसमें ओमेगा भी नेगेटिव होगा और टी की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे यू विल हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ ओमेगा टू बी पॉजिटिव एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ टी टू बी नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अगर पॉइंट होगा ऐसा तो वो प्लस ओमेगा माइनस टी के फॉर्म में होगा, और ऐसे ही ये सारी चीज़ें इन सारे प्लेन्स में। ठीक है, तो नाउ अगर हम एग्जैक्टली यही चीज़ जो है वो इस वाले प्लेन में देखते हैं, दैट इज टी ओमेगा प्लेन, ये गलत लिखा हुआ है, टी ओमेगा प्लेन में देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके पास एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो है आपके पास ओमेगा भी पॉजिटिव है और टी भी पॉजिटिव है। ठीक है, ओमेगा के टर्म्स में लिखा है हमने, मोटर प्लेन को यहीं पे लेके आए तो पहले हमने ओमेगा लिखा है, इसमें ओमेगा भी पॉजिटिव है और टी भी पॉजिटिव है। दूसरे वाले केस में वाई एक्सिस पे तो ये ओमेगा पॉजिटिव है और टी नेगेटिव है। ठीक है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, यानी ऑल द कोऑर्डिनेट्स इन दिस प्लेन विल टर्न आउट टू बी ऑफ नेगेटिव वैल्यूज, either omega or t. And then in the fourth quadrant you have all the values of omega to be minus and all the values of t to be plus or positive. ठीक है, अब now here we define your operations. Operations are defined like this. अभी हम मोटर की बात करते हैं पहले। ठीक है, हमने दोनों प्लेन्स में देख लिया क्या क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा फ़र्क कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों का एक सा है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट भी दोनों का एक सा है, ठीक है, इसमें भी दोनों नेगेटिव हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है इसका, इसमें माइनस टी प्लस ओमेगा है और इसमें प्लस ओमेगा माइनस टी है, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो माइनस ओमेगा प्लस टी है और इसमें प्लस टी और माइनस ओमेगा, यानी ये दोनों क्वाड्रेंट्स आपस में इंटरचेंज्ड हैं इन दीज टर्म्स। तो अगर टी ओमेगा और ओमेगा टी प्लेन लें तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट जो हैं दैट आर वेरी सिमिलर and the values of these coordinates or the sign of these coordinates is same। ठीक है, और सेकेंड और फोर्थ जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं if you have these plane systems to be changed। This is just an inspection। Now we define the operations। Operations in this case in which the value of both the systems are same, both the variables are same, यानी ओमेगा भी वही है और टी भी वही है। तो अगर आप ये देखते हैं जो मैंने आपको ये दिखाया था, या दिस वन, ठीक है, तो यू हैव द डायरेक्शन ऑफ मोटर टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ स्पीड टू बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द motor torque and the direction of load torque is opposite to it। ठीक है, this is a normal motoring condition, यानी जिस हिसाब से आप मोटर टॉर्क अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। दिस इज वेरी नॉर्मल ऑपरेशन एंड इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये दोनों पॉजिटिव है, यानी जो आपके पास जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगाया जा रहा है, मोटर टॉर्क है आपके पास, उसी डायरेक्शन में ही आपको स्पीड मिल रही है। Actually these plus and minus denote the directions over here। ठीक है, यानी स्पीड, ये माइनस स्पीड का मतलब कुछ कम स्पीड नहीं हो जानी, कम तो जीरो से लेकर ओमेगा यहाँ ऊपर तक है पूरा। माइनस मीन्स दैट इट इज एन अपोजिट डायरेक्शन। टॉर्क का माइनस का मतलब ये है कि वो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन, जीरो से कम टॉर्क का मतलब ये है दैट द टॉर्क इज एन अपोजिट डायरेक्शन। जीरो से कम स्पीड का मतलब ये है, नेगेटिव, या इनफैक्ट जीरो से कम नहीं, नेगेटिव स्पीड का मतलब ये है that the speed is in the opposite direction। ठीक है, तो what we have over here is that the speed and torque both are in the same direction and the machine is motoring। so when these signs are of the of same nature, दोनों प्लस हैं यहाँ पे और ओमेगा भी प्लस है, तो what will happen, you will have a forward। अब हम यहाँ पे एक चीज और डिफाइन करते हैं कि that we define a direction to be forward and another to be backward। So any direction can be considered to be forward or initial direction can be considered to be forward। कोई भी चीज़ आप फॉरवर्ड मान सकते हैं, मगर दूसरी रिवर्स करी जाएगी। अगर एक चीज़ फॉरवर्ड मान लेते हैं, से क्लॉकवाइज इज फॉरवर्ड, देन यू ऑलवेज से एंटी क्लॉकवाइज इज बैकवर्ड। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, यू स्टार्ट द मोटर,
तो अब आप कहते हैं इसका फेज रिवर्सल कर दो, इसका साइन, इसका डायरेक्शन पलट दो। पलट दो का मतलब यह है कि पहला वाला आपने सीधा मान रखा, तभी तो दूसरे के पलटने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द वेरी सेम थिंग happens over here is that we consider it to be plus in a particular direction, so we say it forward. So that is forward F, and because these two signs are same, so you consider it to be M. That is for motoring. तो ये फॉरवर्ड मोटरिंग कहलाती है ये चीज, जब दोनों साइंस जो हैं वो एक से हों और ओमेगा पॉजिटिव हो। यानी इसमें दो चीजें आप लिखेंगे, मोड्स ऑफ ऑपरेशन आपके पास फॉरवर्ड वो सॉरी मोटरिंग और ब्रेकिंग होगा, जैसे मैंने पिछले टर्न पे ही बताया था, दोबारा बता देता हूं मैं। मोटरिंग का मतलब ये होता है कि दैट यू आर गिविंग एनर्जी इनटू द सिस्टम और इनटू द मोटर, एंड ब्रेकिंग का मतलब ये होता है यू आर टेकिंग आउट एनर्जी फ्रॉम द दैट मोटर लोड सिस्टम और द मोटर इटसेल्फ। ऑब्वियसली शाफ्ट उसकी उसमें कनेक्टेड है, तो अगर आप उसमें से ब्रेक कर रहे हैं कोई भी चीज़, BRAKE ब्रेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली उसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो वहाँ से रिमूव करे दे रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन, द सिस्टम विल स्टॉप। अगर वो सीधी जा रही है तो उसमें इट हैज़ गॉट ए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी है उसमें, तो व्हाट यू एक्चुअली डू, इफ यू टेक आउट दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ से सिंपल आपके पास मैकेनिकल ब्रेक्स हैं, तो क्या करते हैं आप, उस काइनेटिक एनर्जी को आप वेस्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, सिंपल ब्रेकिंग जो होती है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई लिफ्ट है ऊपर से नीचे आ रही है, तो अगर उसे ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, तो पोटेंशियल है एक सर्टेन हाइट पे मौजूद है, तो उसे अगर आपको ब्रेक करना है, रोकना है, तो क्या होगा कि आप उस एनर्जी को जो उसमें कंटेंट है वो आप किसी उसमें वेस्ट करिए उसे, ठीक है। वेस्ट करने या उसे उसमें से निकाल लीजिए, इनफैक्ट वो ज़्यादा अच्छा वर्ड है। निकालने का मतलब हीट के फॉर्म में निकालना है उसे। और कभी कभी रीजनरेटिव मोड भी होता है जिसमें आप उसे एक्चुअली जो आपने एनर्जी दी होती है मोटर में, तो ये उस मोटर लोड सिस्टम में एक्सलेट कराने के लिए, उसे स्पीड तक पहुंचने के लिए, उसे वापस सोर्स में हम कर लेते हैं। दैट इज नोन एज रीजनरेशन। यानी जो आपने एक बार ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी उसमें दे दी थी, आप उसे रीजनरेट करके वापस ले ली। ट्रांसफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई थी, तो आप उसे रीजनरेट करने का मतलब उसे वापस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वापस ले लें। उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, विल बी सीइंग दैट, ठीक है। सो यू हैव टू मेन मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए मशीन। यू हैव ए मोटरिंग मोड जिसमें एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल टू या इनटू द लोड जाती है, और ब्रेकिंग मोड होता है जिसमें आप एनर्जी बाहर निकालते हैं, चाहे वेस्ट कर दें चाहे कुछ भी करें, उसमें से मोटर लोड सिस्टम में से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आमतौर से यही होता है कि व्हेन यू हैव ए सिस्टम टू बी ब्रेक्ड, इन दैट केस द स्पीड रिड्यूसेस इफ जनरली इट इज़ नॉट एन एक्टिव लोड। एक्टिव लोड का मतलब यह है कि आपके पास लिफ्ट है तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो आप उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बट स्टिल एनर्जी इज बीइंग टेकन आउट, बिकॉज अगर उसे अपने हाल पे छोड़ देंगे तो इट विल फॉल डाउन। और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो जैसे जैसे आप निकालते रहेंगे वैसे वैसे स्पीड उसकी कम होती चली जाएगी, ठीक है। सो हियर व्हाट वी हैव फोर मोड्स, टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मोटरिंग एंड ब्रेकिंग, एंड वी हैव टू डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन को हम एफ और आर से डिनोट करते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स, और मोटरिंग को एम से और ब्रेकिंग को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो वील चेक आउट दैट which regions will be in which quadrant of operation, which regions would be operating or say be considered in that particular quadrant. तो इसके सिंपल रूल्स होते हैं। पहला रूल यही होता है कि अगर ओमेगा और टी एक ही डायरेक्शन में है, इन दैट केस द मशीन इज गोइंग टू इज एक्चुअली मोटरिंग, ठीक है, जो मैंने आपको सिंपल केस दिखाया। एंड द थिंग इज दैट इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू बी पॉजिटिव, इन दैट केस इट बिकम्स फॉरवर्ड। तो यू कैन मार्क इट एज फॉरवर्ड मोटरिंग। मोटरिंग क्योंकि दोनों के साइन एक से हैं, और फॉरवर्ड क्योंकि ओमेगा प्लस है। कम टू द सेकेंड वन, ठीक है। आपके पास ओमेगा पॉजिटिव है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओमेगा पॉजिटिव है, तो फॉरवर्ड लिख गया, और ओमेगा और टी दोनों के साइन जो हैं वो अलग अलग हैं, ये प्लस है माइनस है, तो दैट इज व्हाई इट इज ब्रेकिंग, ठीक है। तो दैट इज फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फॉरवर्ड बिकॉज ओमेगा इज पॉजिटिव, and braking because both omega and t have different signs. Come to the third quadrant, ठीक है। ओमेगा माइनस है तो उसके लिए रिवर्स लिख दिया हमने सबसे पहले, और ओमेगा और टी का साइन एक सा है, दोनों माइनस हैं,
तो दैट मीन्स इट इज़ अ मोटरिंग केस। ये टिपिकल केस होता है जैसे आप फेज रिवर्सल कर दें 3 फेज इंडक्शन मोटर में, डायरेक्शन उसकी पलट जाएगी मगर स्टिल वो एनर्जी अंदर लेगा। नाउ कमिंग फ्रॉम द फोर्थ वन, अगर टी यू हैव नेगेटिव हो सर ब्रेकिंग होता है। क्या? सर आपने बताया था सर टी नेगेटिव होने से ब्रेकिंग होता है। टी नेगेटिव होने से ब्रेकिंग नहीं होता, दोनों के साइन अपोजिट हो तो ब्रेकिंग होता है। ओके सर, दोनों के ठीक साइन ठीक। अपोजिट हो तो ब्रेकिंग होता है। और फॉरवर्ड और रिवर्स जो होता है वो ओमेगा के साइन से होता है। तो यहाँ ओ पे ओमेगा नेगेटिव है तो रिवर्स आ गया आर, ठीक है। और दोनों के साइन एक से हैं, यहाँ पे जैसे दोनों के साइन एक से थे तो ये मोटरिंग है, ठीक है। अब ये वाला केस है आपके पास, तो इन दिस केस ओमेगा इज नेगेटिव, so you put a reverse and omega and t have different signs, so this is breaking, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, यहाँ पे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मगर दोनों ब्रेकिंग थी, ठीक है। और फॉरवर्ड और रिवर्स डिसाइड होगा कि दैट वी हैव आइदर ओमेगा टू बी प्लस और माइनस। अब मगर अगर दोनों के अपोजिट साइंस हैं तो इन बोथ दीज कंडीशंस यू विल बी हैविंग ए ब्रेकिंग मोड। ये भी ब्रेकिंग है और ये भी ब्रेकिंग है, ठीक है। इस केस में क्या है, दोनों के साइंस एक से हैं तो दोनों मोटरिंग है। ये ओमेगा पॉजिटिव है तो दिस इज फॉरवर्ड एंड ओमेगा नेगेटिव है तो ये बैकवर्ड होगा। सो दिस इज अबाउट टी ओमेगा प्लेन, टी और ओमेगा, ये नीचे गलत लिखा हुआ। देन यू हैव ऑन द वेरी सेम प्रिंसिपल्स व्हाट यू कैन हैव इज दैट यू कैन हैव एन ओमेगा टी प्लेन। एग्जैक्टली वही रूल्स लगेंगे आपके पास इसमें। दोनों के अगर साइंस एक से हैं आपके पास तो इट विल बी ए मोटरिंग मोड, और अगर ओमेगा पॉजिटिव है तो उसके बाद इट विल बी ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो पहला वाला दोनों साइन एक से हैं एंड ओमेगा इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो इन दैट केस इट इज फॉरवर्ड मोटरिंग बिकॉज दोनों साइन एक से हैं। फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि ओमेगा प्लस है। मोटरिंग क्यों? क्योंकि दोनों एक से हैं। इस टी ओमेगा प्लेन में भी एग्जैक्टली यही चीज थी। पहला वाला जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉरवर्ड मोटरिंग ही थी। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। ओमेगा इज माइनस सो इट इज रिवर्स एंड ओमेगा एंड टी आर ऑफ डिफरेंट साइंस सो इट इज ब्रेकिंग, ठीक है। तो यानी रिवर्स ब्रेकिंग, रिवर्स वाई? बिकॉज इट इज ओमेगा इज माइनस। छोटा कर लेता हूं थोड़ा। इस वाले केस में ये फॉरवर्ड ब्रेकिंग थी क्योंकि यहाँ वो था ओमेगा पॉजिटिव था। ये रिवर्स ब्रेकिंग होगी क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपके पास ओमेगा नेगेटिव है। दैट मीन्स इन ओमेगा टी प्लेन यू विल बी हैविंग अ सेकंड क्वाड्रेंट विद ए रिवर्स ब्रेकिंग। थर्ड वन विल बी द सेम एज दिस वन, रिवर्स है डायरेक्शन ओमेगा की, दोनों एक से हैं तो इट इज मोटरिंग, तो it is reverse motoring. And the fourth one is omega is positive, so it is forward. Omega and T are of different signs, so it is braking, so it is forward braking. So actually the second and the fourth quadrant are interchanged in this manner, ठीक है। So when you have a T omega plane and an omega T plane, you need not to very much memorize कि किस में कौन से में क्या था. You can simply follow these rules that you have this law that whenever you have a positive sign of omega, you consider it to be a forward direction, and the signs of omega and t are same, so you consider it to be a motoring mode, and if they are different, you consider it to be a braking mode. ठीक है, तो you need not to be worrying about how to mark the modes of operation if the characteristics of either load or motor are drawn in ओमेगा टी प्लेन और टी ओमेगा प्लेन। अगर आप याद रखेंगे ऐसे तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी रूल्स याद कर लेंगे तो चीज़ आसान हो जाएगी। अगर वैसे आप इसे रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे कि ये फोर्थ में ही होता है, थर्ड में ही होता है, ठीक है, सो इट विल बी ए डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, तो अब हम कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बनाएंगे, अगली बार बना के भी दिखाएंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेंगी। तो यू कैन वेरी वेल आइडेंटिफाई दोज कैरेक्टरिस्टिक्स that how the characteristics are actually transformed when they are drawn from omega t to t omega plane or t omega to omega t plane. How these characteristics are transformed
still you'll be very easily chalking out that in which mode this system is going to work on these basic rules. Either it is a t omega plane or an omega t plane. ये तो हमने यहाँ पे कर दी. ये चीज़ आपको आमतौर से किसी कंपैरिजन की किसी भी किताब में, ये वाले रूल्स किसी भी किताब में मुश्किल ही मिलेंगे आपको. ठीक है, तो आई विल बी ऑल्सो अपलोडिंग दिस. मैं ठीक भी कर दूंगा ऐसे पहले. And if at any stage you find that of all this subject, ये कहीं भी ड्राइव्स में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े कि ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, यू कैन सिंपली पुट दीज टू रूल्स के साइन देखें ओमेगा का कौन सा है और टी और ओमेगा का रिलेटिव साइन देखें, तो you can simply check out in which mode it is going to work without any confusion of t omega, omega t or any type of characteristic. किसी चीज़ की भी, किसी भी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक हो, you need not to know the basics of those कैसे ऑपरेट करता है, क्या करता है. Simply by the inspection of the characteristics you can find out that in which mode this system is actually working. ठीक है, चलो किसी को किसी और पूछना है कुछ इस बारे में, whatever I have told today? चलो ठीक है, then I will be uploading this one also on your classroom and you go through it, and if you have any doubt then you can ask me tomorrow. Okay, thank you then.